हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का क्लास 11 की बायो की बुक हमने शुरू करी। सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म दैट फॉर एग्जांपल जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। मैंगीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। ये रिप्रेजेंट करता है जीनस, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पेशीज और थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट करता है नाम ऑथर का। इंडिकेट्स करता है कि ये जो स्पेशीज है इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनी। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सच मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे कुछ भी चीज़ को हम ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम रिकॉग्नाइज करते हैं ग्रुप्स को जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स हम एसोसिएट करते हैं कुछ कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स के साथ उस ग्रुप में। सो व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ dog? Obviously each one of us will see dogs as uh, and not cats. However, if you were to think of Alsatians, we know what we were talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of a mammals जिसके पास external ears हो and body hair हो. Likewise in plants, अगर हम if we are talking about wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice plants, animals are convenient categories we use to study organisms. So, scientific term for these categories is known as taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at different level. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. And animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. Hence, based on characteristics, जितनी भी सारी living organisms है, we can classify them into different taxa. So, this process of classification is known as taxonomy. External and internal structure, along with the structure of cell. Development process किस तरह की है? Ecological information of organism essential है, and ये form करता है basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basis to taxonomy. So taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. So early days की अगर हम बात करें, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, earliest classifications were based on the uses of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. So Linnaeus ने यूज किया systema naturae को as the title of his publication, and scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms की organisms कैसे क्या क्या उनमें evolutionary relationship है, कैसे evolution हुआ, कैसे evolve हुए। अब बात करते हैं taxonomic categories के बारे में। Classification single step process नहीं है, but यहाँ पे बहुत सारे steps होते हैं। हर एक step represent करता है एक rank
उस रैंक को हम कैटेगरी भी बोलते हैं। सिंस कैटेगरी पार्ट है इस ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का, तो हम इसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हर एक जो कैटेगरी होती है रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को, और इसको हम टेक्सोन बोलते हैं एंड प्लूरल होता है टेक्सा। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉमन फीचर्स शेयर करता है, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो जितने भी इंसेक्ट होंगे उनके 3 पेयर होंगे जॉइंटेड लेग्स के। इसका मतलब होता है कि इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड थस हम इसको एक कैटेगरी या फिर रैंक दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। Each rank or taxon, in fact, represents a unit of classification. These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. So, taxonomical studies of all living organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, फाइलम को हम डिविजन्स भी बोलते हैं, फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पेशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे प्लेस करें। बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज को इंडिविजुअल्स के बीच में उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्पेशीज। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर करता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, उसको एक स्पेशीज की तरह हम देखते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा लियो लाइन, ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट्स करता है स्पेसिफिक एपिथेट्स को, while the first words मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा जेनेरा है एंड रिप्रेजेंट्स करता है अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैंथेरा की बात करें, सो पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स जिसको हम टिग्रिस नाम से बुलाते हैं, एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पेशीज लाइक निग्रम एंड मेलनगेना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पेशीज जिसको हम सेपियंस कहते हैं, विच इज ग्रुप्ड इनटू द इन द जीनस होमो। साइंटिफिक नेम thus for human being is written as Homo sapiens. So this represent genus and this species. Now genus क्या होता है? Genus comprise करता है a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. तो वो organisms, वो related species जिनमें characters common होते हैं, we can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato की बात करें एंड ब्रिंजल बैंगन की बात करें, 2 डिफरेंट स्पेशीज होती हैं, बट दोनों को एक ही जीनस में डाला है, जीनस का नाम है सोलेनम। लाइन पैंथेरा लियो लिपर्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टिगर पैंथेरा टिग्रिस। सेवरल कॉमन फीचर्स है, सारी की सारी जो स्पेशीज है जीनस पैंथेरा को बिलोंग करती है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। उसके बाद आता है फैमिली। तो फैमिली में क्या आ जाता है? फैमिली में आ जाता है नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली, यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच स्टिल
less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. So among plants, for example, 3 different genera जैसे Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera जो comprise करता है lion को, tiger को, leopard को, is put along with genus Felis, cats in the family Felidae. Similarly, अगर आप observe करेंगे cats के features, dog के features, so you will find some similarities and some differences as well. They are separated into different families, Felidae and कैनिडे रेस्पेक्टिवली. तो फैमिली में आ जाता है रिलेटेड जीनस. अब ऑर्डर में क्या आता है? ऑर्डर में हम देखते हैं, यू हैव सीन दैट अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पेशीज, जीनस एंड फैमिलीज are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order, being a higher category, is the assemblage of families which exhibits a few similar characters. Similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. Animal order Carnivora includes families like Felidae and Senidae. उसके बाद आता है क्लास. सो क्लास रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड ऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें आ जाते मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals जैसे tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. Phylum में क्या आता है? Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute करता है नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम फाइलम बोलते हैं. सारे जो भी फाइलम होंगे आर बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस है नोटोकोड की, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम की, उनको हम फाइलम कोडेटा में इंक्लूड्स कर देते हैं. सो प्लांट्स के केस में क्लासेस जहाँ पे फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. किंगडम में क्या आता है? जितने भी एनिमल्स हैं बहुत सारे फाइला को बिलोंग करते हैं, उनको हम हाईएस्ट कैटेगरी असाइन कर देते हैं जिसको बोलते हैं हम किंगडम एनिमेलिए इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज अ डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज करता है सारे के सारे प्लांट्स बहुत सारे डिविजन से. henceforth we will refer to these two groups of as animals and plant kingdom. Taxonomic categories from species to kingdoms have been shown in ascending order started with species in figure 1.1. So these are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. So look at the hierarchy in figure. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from a species to kingdom, number जो होते हैं common characteristics के goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristics that the numbers within the taxon share. जितनी higher category होगी, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है हायर लेवल पे. टेबल 1.1 इंडिकेट्स कर रही है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग. ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. एक इस पे नज़र लगा लेते हैं. सो यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम है मैन, बायोलॉजिकल कॉमन नेम है मैन, बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस होमो, family Hominidae, order Primata, class is Mammalia and phylum division is Chordata. Housefly, Musca domestica, Musca is genus, Muscidae is family, Diptera is order, class is Insecta, Arthropoda is division or phylum. Mango, Mangifera indica, Mangifera, then family है Anacardiaceae, then order is Sapindales and category classes Dicotyledonous
Lidoni, and its phylum division is Angiospermae. Wheat, Triticum, Aestivium, Triticum, Poaceae, Poles, Monocotyledoniae and Angiospermae. तो यहाँ पे हमने ये देखा है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल. दिस इज़ द समरी. तो समरी में बस इतना ही है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं, उनको कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, नोमेनक्लेचर दे दिया है, आइडेंटिफिकेशन किया है, उनका क्लासिफिकेशन किया है. सो इस ब्रांच ऑफ नॉलेज को जो डील करती है